अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट पेपर 2 ऑफ क्लास 10th। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। So test paper 2 of class 10th and which include chapter number 14, 15, 16, 17 and 18. So first of all हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर, जिसमें टोटल 12 MCQs हैं और एक MCQ के 4 ऑप्शंस हैं and you have to choose the best option. Clear? The MCQ number 1, the unit of electric current is A. ampere, B. resistance, C. volt and D. both A and B. So unit of electric current is ampere. So option A is correct. The second, the number of turns in a step-up transformer is. Options are A. Ns greater than Np, B. Np greater than Ns and C. Ns is equal to Np and D. None. So step-up transformer में secondary number of turns हमेशा ज़्यादा होते हैं और primary हमेशा कम होते हैं. So option A is correct, which is Ns is greater than Np. Now the third MCQ. The opposition to the flow of charge is called. Options are resistance, B. current, C. charge and D. voltage. So चार्ज के फ्लो में जो ऑपोजिशन होती है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. द फोर्थ वन, द यूनिट ऑफ EMF इज. ऑप्शंस आर ए मीटर, बी किलोमीटर, सी वोल्ट्स एंड डी मीटर स्क्वायर. सो EMF का यूनिट होता है वोल्ट, विच इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसका यूनिट है वोल्ट. क्लियर? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. द फिफ्थ MCQ, द क्वांटिटीज विच आर कॉन्टिन्यूअस. ऑप्शंस आर A. analog, B. digital and C. discrete and D. none. So कौन सी quantities जो हैं वो continuous होती हैं and they are analog quantities जो कि हर movement पर change हो रही होती हैं. Digital quantity जो है वो step by step vary करती है. So continuous quantity है analog. So option A is correct. Now the sixth MCQ, which one of the following is the formula to calculate the power? Options are A. P is equals to VI, B. P is equals to W over T and C. P is equals to I square R and D all of these. So all of these is the correct option because ये तमाम के तमाम formulas से आप power calculate कर सकते हैं. Clear? The seventh MCQ, the relation between relative motion of bar with induced EMF is. Options are A. directly, B. inversely and C. no relation and D all of these. So एक बार का जो motion है वो इंड्यूस्ड EMF के साथ उसका किस तरह से रिलेशन है, तो ये डायरेक्टली रिलेशन है. बार जितना स्पीडली मूव करेगा, हरकत में होगा, उतना ज़्यादा EMF इंड्यूस्ड होगा. सो दैट वाई दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ द एट्थ MCQ, करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच इज डायरेक्ट करंट, DC. Ninth MCQ, what is the direction of magnetic field lines inside a bar magnet? So एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? So options are A. south to north, B. north to south and C. south to south and D. none of these. So मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो साउथ टू नॉर्थ होती है. So option A is correct. Now the MCQ 10, which of the following is a component of CBIS? CBIS stands for कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन. सो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ऑप्शंस आर ए मैसेज, बी सॉफ्टवेयर, सी हार्डवेयर एंड डी बोथ बी एंड सी. सो बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इसके कंपोनेंट्स हैं. ओके, सो नाउ द 11th MCQ, बेटा रेज आर. ऑप्शंस आर ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन्स एंड डी नन ऑफ द अबव. सो बेटा रेज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं बेसिकली. ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ द 12th MCQ, which of the following combines the two smaller nucleuses? Options are A. fission, B. fusion, C. both A and B and D none of these. So fusion reaction जिसमें two smaller nucleus जो हैं वो combine हो जाते हैं और एक larger जो है वो कोई भी product बनाते हैं. Clear? So B correct option, fusion. So I hope the objective part आपको clear हो गया होगा. Now move to subjective part, and the part 1, it consists of 3 parts of the short questions and each part you have to choose the best 5 short questions and attempt it. So the question number 2, attempt any 5 parts. So आपने इसमें से 5 parts सबसे पहले चूज करने हैं कि इसमें कौन से बेस्ट 5 parts जो आपको अच्छे से याद हैं. I am going to discuss the parts one by one. The first part, define electric current.
तो आपने इलेक्ट्रिक करंट को जस्ट डिफाइन करना है एंड सेंटर में आप मेन हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड देन सब हेडिंग देंगे साइड पर विच इज डेफिनेशन, और आपने जिस इसको डिफाइन करना है। एंड एज यू नो कि जिस भी डेफिनेशन का फॉर्मूला और यूनिट होता है तो आपने उसका फॉर्मूला और यूनिट भी साथ मेंशन करना है। इट मेक्स योर पेपर मोर अट्रैक्टिव। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस को जस्ट आपने यहाँ पर डिफाइन करना है। सो आप मेन हेडिंग देंगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन आपने स्टार्ट करना है इसका आंसर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर causes the dissipation of electrical energy into other forms of energy as charges flow through the circuit. Clear? Now the third part, define electromotive force which is EMF. So just आपने इसको define करना है। Again आप main heading देंगे electromotive force and then the sub heading definition. Then आपने इसकी definition start करनी है and again आपने इस definition के साथ भी आपने इसका formula साथ जरूर mention करना है। EMF is equals to work over charge. Clear? EMF is equal to W over Q. Now the fourth part, define Ohm's law. तो आपने Ohm's law को यहाँ पर define करना है, that means state करना है। तो आप main heading देंगे पहले Ohm's law, then आपने side पर सब heading देनी है statement and आपने Ohm's law को state करना है और आपने इसका formula भी mention करना है which is V is equals to IR. Now the fifth part, define electrical energy. तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन करना है। तो आप मेन हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन द सब हेडिंग इज डेफिनेशन। सो यू कैन डिफाइन इट एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट I, resistance R and the time duration T. Hence electrical energy is equals to I square RT, which is actually the Joule's law. Okay, now the sixth part, what is the direction of magnetic field? तो magnetic field की डायरेक्शन क्या होगी? Direction of magnetic field around the current carrying conductor can be determined by right hand grip rule. So ये आपने mention करना है कि हम magnetic field की जो direction है एक current carrying conductor में वो हम find out कर सकते हैं by right hand grip rule. Okay, and then आपने further define करना है कि वो right hand grip rule क्या है. Okay, so grasp a wire with your right hand such that your thumb pointed to the direction of the conventional current. The curling fingers of your hand will point in the direction of magnetic field. Clear? कि वो जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो पॉइंट आउट करती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। नाउ द सेवंथ पार्ट, डिफाइन लेंस लॉ। तो अपने लेंस लॉ को जस्ट स्टेट करना है। अगेन मेन हेडिंग आप देंगे लेंस लॉ एंड साइड पर आप सब हेडिंग देंगे स्टेटमेंट एंड आपने लेंस लॉ को स्टेट करना है सिंपली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो दिस इज द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगेन आप मेन हेडिंग देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन आपने उसको डिफाइन करना है। फर्दर द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड इंड्यूस करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू इट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? सो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स। सो अगेन आपने कोई से 5 पार्ट चूज करने हैं, वो 5 पार्ट जो कि आपको बहुत अच्छे से याद हैं। एंड द फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ EMF इन अ सोलेनॉइड। सो EMF की डायरेक्शन एक सोलेनॉइड में क्या होती है। सो ये भी हम डिफाइन करेंगे इस तरह से कि पहले आपने ये बताना है कि एक सोलेनॉइड में आप EMF की डायरेक्शन आप बताते हैं बाय राइट हैंड ग्रिप रूल से और फिर आपने उस राइट हैंड ग्रिप रूल को फर्दर डिफाइन करना है। क्लियर? नाउ द सेकंड पार्ट, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन। तो आपने जस्ट म्यूचुअल इंडक्शन को यहाँ पर डिफाइन करना है। सो आप मेन हेडिंग देंगे म्यूचुअल इंडक्शन सेंटर्ड में, देन द सब हेडिंग साइड पर आप देंगे डेफिनेशन, देन आपने इसको डिफाइन करना है। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? नाउ द थर्ड पार्ट, व्हाट आर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? सो इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो कि डिजिटल क्वांटिटीज के साथ डील करती हैं उन्हें हम कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर? सो यहाँ पर आप साथ कोई सी 2 एग्जांपल्स भी आप कोट कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ वन, डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल क्वांटिटीज। तो आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। सो रिमेंबर वन थिंग, जब भी पेपर में डिफरेंशिएट का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको टेबल फॉर्मेट में डिफरेंशिएट करना है। आप पहले मेन हेडिंग देंगे एनालॉग क्वांटिटीज एंड डिजिटल क्वांटिटीज साइड बाय साइड, अंदर आपने उसके सेंटर में आपने एनालॉग क्वांटिटीज को डिफाइन करना है एंड सिमिलरली आपने डिजिटल क्वांटिटीज को आपने डिफाइन करना है और आपने सेंटर्ड में मार्कर से लाइंस ड्रॉ करनी है। क्लियर? नाउ द फिफ्थ पार्ट, व्हाट इज NAND गेट। तो NAND गेट क्या होता है? NAND गेट जो है वो बेसिकली
सिंपली फॉलो करता है एंड ऑपरेशन को और नॉट ऑपरेशन को. सो आपने इस तरह से इसका आंसर मेंशन करना है. NAND ऑपरेशन इज सिंपली एन एंड ऑपरेशन फॉलोड बाय अ नॉट ऑपरेशन. द NAND गेट इज ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग अ नॉट गेट विद द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द AND गेट. क्लियर? नाउ द सिक्स्थ पार्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ लॉजिक गेट. सो लॉजिक गेट का क्या यूज है? सो लॉजिक गेट को हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि these circuits usually use light depending resistors LDRs to keep inputs low, and LDR can act as a switch that is closed when illuminated by light and open in the dark. Clear? So I hope your question आपको clear हो गया होगा. Now move to next question. What is OR gate? So OR gate क्या होता है? The logical operation in which the value of the output variable 1 of the both input variables have value equals to 1. So आपके output variable पे 1 आएगा हमेशा जब आपके दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट जो है वो 1 होगी, तो आपके आउटपुट में हमेशा 1 शो होगा. क्लियर? सो दिस इज OR गेट. नाउ द लास्ट पार्ट, डिफाइन द टर्म ICT विच इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो ये क्या होती है, आप जस्ट इसको डिफाइन करना है. सो आप मेन हेडिंग देंगे सेंटर में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड देन सब हेडिंग साइड पर आप देंगे डेफिनेशन, एंड देन आपने इसको डिफाइन करना है. Clear? Now move to question number 4. Attempt any 5 parts. So you have to choose the best 5 parts जो कि आपको बहुत अच्छे से याद हैं. And the first part, what is software? Software क्या होता है? Software basically वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हार्डवेयर को रन करवा रही होती हैं. Clear? So instructions to the hardware of computer that tells the CBIS parts what to do. After instructions, the hardware parts of CBIS produce the useful information from raw data, and the computer software further divided into system software and application software. Mean there are two types of software, that is system software and application software. Okay. Now the second part, define web browser. So आपने web browser को just define करना है. Again इसकी definition आपने बुक से याद की होगी, तो आपने just center में main heading देनी है web browser, then side पर sub heading is the definition, and then आपने उसको define करना है. Now the third part, what are internet services? So internet services क्या हैं? The main सर्विसेज यूज ऑन द इंटरनेट इंक्लूड वेब ब्राउजिंग और ईमेल. देन आपने वेब ब्राउजिंग को भी फर्दर एलेबोरेट करना है और ईमेल को भी फर्दर आपने एलेबोरेट करना है कि ये दोनों क्या हैं. नाउ द फोर्थ पार्ट, डिफाइन आइसोटोप्स. तो जस्ट आपने आइसोटोप्स को यहाँ पर डिफाइन करना है और आपने एक एग्जांपल कोड करनी है कि आइसोटोप बेसिकली होते क्या हैं. जैसे कि हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स. तो इसके 3 आइसोटोप्स क्या हैं? दैट इज प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम. क्लियर? नाउ द फिफ्थ पार्ट, डिफाइन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. तो आपने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करना है, विच इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. क्लियर? सो वो जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है रेडिएशन का, उसे हम कहते हैं, जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई से इमिट हो रही होती हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. क्लियर? नाउ द सिक्स्थ पार्ट, डिफाइन बैकग्राउंड रेडिएशन. तो अगेन आपने जस्ट बैकग्राउंड रेडिएशन को डिफाइन करना है. इसकी डेफिनेशन आपने बुक से याद की होगी और आपने जस्ट सेंटर में मेन हेडिंग देनी है बैकग्राउंड रेडिएशन, देन साइड पर आप सब हेडिंग देंगे डेफिनेशन, एंड देन आपको उसको डिफाइन करना है. द सेवंथ पार्ट, डिफाइन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या हैं? वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है, वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं और वो रेडिएशंस एमिट कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. Clear? The elements whose atomic number is greater than 82 are naturally unstable, and these elements are called natural radioactive elements. Now the last part, define half life. तो जैसे आपने half life को define करना है, again आप center में heading देंगे half life, then आप side पर heading देंगे definition, और आपने इसको define करना है और आपने एक example भी कोड करनी है, जैसे कि half life of carbon. Okay? So आप carbon की half life जो कि आपने बुक से याद की है, आप उसको यहाँ पर mention कर सकते हैं. Clear? Now the part 2, attempt any 2 questions. So आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से याद हैं. बट रिमेंबर वन थिंग, कि आप जिस क्वेश्चन का पार्ट ए अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने पार्ट बी भी उसी क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है. अगर आप पार्ट बी किसी और क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको एक पार्ट के तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको बी पार्ट के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. क्लियर? सो मेक श्योर कि आप ए बी पार्ट जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो एक ही क्वेश्चन के होने चाहिए. सो क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जाउस लॉ. सो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जाउस लॉ पर आपने नोट लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाउस लॉ को यहाँ पर स्टेट करेंगे, देन आप
एक्सप्लेनेशन लिखेंगे मेन हेडिंग, ओके। देन आपने उसको एक्सप्लेन करना है और आपने सेम एज जैसे फार्मूलाज बुक में ड्राइव किए गए हैं वैसे आपने फार्मूलाज जो हैं वो वन बाय वन आपने ड्राइव करते जाना है, क्लियर। और एंड पे आपने कोई सी एग्जांपल्स भी देनी है कि इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप फर्दर कहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं, ये किस तरह से कन्वर्ट हो रही हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। नाउ मूव टू पार्ट बी। The resistance of a conductor wire is 10 mega ohm. If a potential difference of 100 volt is applied across its ends, then find the value of current passing through it as in milliampere. So very simple question. आपको resistance given है 10 mega ohm, mega which is 10 raised to the power 6, okay, 10 raised to the power 6 ohm, and voltage which is 100 volts. So आपने simply current find करना है milliampere में. So अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, हमने यहाँ पर करंट फाइंड करना है तो हम R को वहाँ पर जाके डिवाइड कर देंगे, सो द फॉर्मूला बिकम्स I इज इक्वल्स टू V ओवर R. सो आपने जस्ट यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है V और R में, और वैल्यूज पुट करने के बाद आपने, क्योंकि आंसर शो करना है मिली एम्पेयर में, सो जो भी आपका आंसर आएगा उसको हम पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे. लाइक आपने 10⁻³ को बेसिकली सेपरेट करना है. सो 10⁻³ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मिली में, क्योंकि ये मिली की वैल्यू होती है, सो ये बन जाएगा मिली एम्पेयर में. सो बाकी जो भी आपके पास पार्ट बचेगा विच इज लाइक 0.01, so that is the answer, 0.01 milliampere. Clear? Now question number 6, write a note on radioisotopes and their uses. तो आपने रेडियो आइसोटोप पर नोट लिखना है और उसके यूजेस भी आपने बताने हैं. सो आप सिंपली पहले मेन हेडिंग देंगे रेडियो आइसोटोप, आपने पहले उसको डिफाइन करना है, और डिफाइन करने के बाद देन आपने इसको फर्दर एलैबोरेट करना है. एलैबोरेट करने के बाद देन आपने यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स आपने टॉपिक मेंशन करना है, एंड देन आपने वन बाय वन हेडिंग्स के साथ आपने उसके यूजेस जो हैं वो बताने हैं. जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ट्रेसर्स एंड देन मेडिकल ट्रीटमेंट्स, एंड सिमिलरली आप इसमें फर्दर सब हेडिंग्स भी बना सकते हैं, लाइक ट्रेसर्स, फिर फर्दर ट्रेसर्स कौन कौन से, लाइक आयोडीन 131, फॉस्फोरस 32, ठीक है, इनके फर्दर ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं. लाइक फॉस्फोरस 32 जो है वो ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो आप इनकी फर्दर सब हेडिंग्स भी आप बना सकते हैं. It makes your paper more attractive. Now the part B, a step-down transformer has a turns ratio of 100:1. Remember, यहाँ पर है step-down transformer, which means primary के number of turns ज़्यादा होंगे और secondary के कम होंगे. तो यहाँ पर जो है 100:1 means 100 जो है वो number of turns primary के हैं और 1 जो है वो number of turns secondary के हैं. And AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary. If the current is the primary is 1 milliampere, what is the current in the secondary? So secondary का current find out करने के लिए first of all हमें secondary के voltage मालूम होने चाहिए, और आपको ratio given है which is NS ratio NP, that is 1:100, and the VP which is 20 volt, and VS आपने पहले find out करना है, and then हम IS find out करेंगे. So VS is equals to question mark. So VS find out करने के लिए हम use करेंगे सिंपल ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन विच इज VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP. जस्ट आपने इसमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है और आप VS कैलकुलेट कर लेंगे विच इज 2000 वोल्ट्स. सिमिलरली आपको करंट गिवन है IP विच इज 1 मिली एम्पेयर, 1 इंटू 10⁻³ एम्पेयर. मिली की वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ सो अब आपने यहाँ पर सिंपली सेकेंडरी करंट कैलकुलेट करना है. जैसे कि हमने पढ़ा था आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में power of primary is equal to power of secondary, and power of primary is equal to VP IP is equal to VS IS. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप IS इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ नोट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम CBIS. तो आपने इस पर नोट लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप CBIS को आप डिफाइन करेंगे, देन आपने उसके मेन पार्ट्स पहले बताने हैं कि उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं. दैट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोसीजर्स एंड पीपल. और फर्दर आपने वन बाय वन आपने इसको एलैबोरेट करना है. क्लियर? द लास्ट पार्ट B, ashes of a campfire deep in a cave show carbon-14 activity of only 1/8 the activity of fresh wood. How long ago was the campfire made? So basically आपने यहाँ पर टाइम फाइंड करना है, टोटल टाइम, और लेट्स सपोज किसी भी एक ashes of campfire deep in a cave show carbon-14 activity. So अब जितने भी हमारे पास एक ओरिजिनल जो सैंपल था विच इज लाइक NO, तो उसकी 1/8 जो है वो बाकी रह जाएंगे. ओके, विच मीन्स द रिमेनिंग सैंपल दैट इज N, दैट इज इक्वल्स टू N0/8. मीन्स कि ओरिजिनल सैंपल जितना भी था N0, उसका वो 1/8 जो है वो बाकी रह जाएंगे. सो
as we know that n is equals to n naught into 1 by 2 raised to the power n, so हम simply n की जगह हम place कर देंगे n naught by 8 और वहां पर आप place is equal to n naught over 2 raised to the power n. तो n naught से कैंसिल हो जाएगा और 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर 3. क्लियर? सो अब यहां पर 1 by 2 और 1 by 2 तो सेम है बेस, जब बेस सेम होती है तो पावर इक्वल हो जाती है, दैट मीन n इक्वल हो जाएगा 3 के. सो इजीली यहां पर हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज n नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय द हाफ लाइफ ऑफ द कार्बन 14. सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज 3 और कार्बन 14 की हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स. तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17190 ईयर्स. क्लियर? सो आई होप कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.